میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے والے ہیں سوئٹزرلینڈ کی، اور آج ہم سوئٹزرلینڈ کے بارے میں وہ تمام باتیں جانیں گے جن سے ہم آج سے پہلے لا علم تھے۔ حسب معمول ایک وہی بات کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ سوئٹزرلینڈ وسطی یورپ کے جنوبی طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک زمین بند ملک ہے جس کے مشرق میں آسٹریا اور لیختینشتائن، مغرب کی جانب فرانس، شمال میں جرمنی اور جنوب میں اٹلی موجود ہے۔ شمال سے جنوب تک سرحدیں 220 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 350 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ملک کا 60% حصہ الپس کے خوبصورت پہاڑوں اور وادیوں سے گھرا ہوا ہے۔ ملک کے اس حصے میں بہت ہی کم تعداد میں لوگ رہائش رکھے ہوئے ہیں اور ملک کے دوسری جانب بھی اونچی نیچی پہاڑیوں کا سلسلہ موجود ہے۔ 41,285 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ یہ ملک دنیا بھر میں 134ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے اور آبادی تقریباً 85 لاکھ افراد کے قریب ہے، جس کی بدولت سوئٹزرلینڈ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 99 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو سوئٹزرلینڈ پر کبھی کسی ملک نے قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی سوئٹزرلینڈ نے کسی دوسرے ملک پر قبضہ کیا ہے۔ یہ آخری 1500 سالوں سے کسی بھی جنگ میں کسی بھی ملک کا حمایتی نہیں بنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی طرز کے گروہ بنے ہوا کرتے تھے جن پر ایک سردار مسلط کیا جاتا تھا جو اس گروہ میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل اور فیصلہ سنایا کرتے تھے۔ یوری، شویز اور انٹر والڈن جو اس علاقے کے بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے، سب نے مل کر ایک آزاد اور خود مختار سلطنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ انہوں نے وہاں موجود ہیبسبرگ قبیلے کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ، طاقت اور ان قبیلوں پر بیجا قبضہ کرنے کے بعد ان کے لوگوں کو غلام بنائے جانے والے عوامل کے بعد کیا تھا۔ یہ ہیبسبرگ وہی خاندان تھا جس نے آسٹریا پر کئی برسوں حکومت بھی کی تھی اور آج بھی اس کی شاخیں لیوپولڈی، ایلبرٹی اور پرتگیزی ہیبسبرگ کے نام سے اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے۔ 1 اگست 1291 میں ان تینوں قبیلوں نے مل کر ایک معاہدہ طے پایا جس کے بعد سوئٹزرلینڈ کا وجود پیدا ہوا۔ آہستہ آہستہ مزید علاقے سوئٹزرلینڈ میں شامل ہوتے گئے۔ 1648 میں یورپ کے دیگر کئی ممالک نے تحریری طور پر سوئٹزرلینڈ کو آزاد ملک تسلیم کر لیا تھا۔ اس تحریری معاہدے کو ویسٹفالیہ کے امن کا نام دیا گیا، جس کے بعد مزید علاقے اس میں شامل ہوتے گئے۔ 1798 میں فرانس نے سوئٹزرلینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت فرانس کا حکمران نپولن تھا۔ اس نے بہت سے قوانین کو تبدیل کر دیا۔ 1815 میں سوئٹزرلینڈ نے اپنے آپ کو فرانس سے آزاد قرار دیا۔ اس موقع پر بہت سے ممالک نے اپنی رائے کا اظہار یوں کیا کہ فرانس سے ہونے والی جنگ میں سوئٹزرلینڈ غیر جانبدار تھا، لہٰذا فرانس کے اس حملے اور قبضے کو غلامی نہیں مانا گیا۔ ملک میں اس عرصہ کے بعد مختصر سی خانہ جنگی ہوئی، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے 1848 میں آئین قائم ہوئے جن میں مزید ترامیم اور تبدیلیاں 1999 میں کی گئی تھیں۔ سوئٹزرلینڈ نے ورلڈ وار 1 اور 2 دونوں میں کسی بھی ملک کی طرف سے جنگ نہیں کی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی غیر جانبداری کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے قیام کے 57 سال بعد تک سوئٹزرلینڈ اقوام متحدہ کا رکن نہیں بنا تھا۔ 2002 میں سوئٹزرلینڈ نے اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی 37.3% آبادی رومن کیتھولک
24.9% स्विस चर्च, 5.8% दीगर मसीही फ़िरक़ों, 5.1% इस्लाम, 2.9% दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखती है, जबकि 23.9% तादाद ऐसे लोगों की भी है जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। स्विट्ज़रलैंड एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की मजहबी तंजीमों की तरफ से मुसलमानों को मसाजिद बनाने पर पाबंदी आयद है। उनका कहना है कि मुसलमान मसाजिद बनाएं, लेकिन मसाजिद पर मीनार तामीर ना करें, क्योंकि यह मुसलमानों के मज़हब की अक्कासी करता है। 3 लाख से ज़ायद मुसलमानों की आबादी के लिए पूरे मुल्क में 160 मसाजिद यानी सेंटर कायम हैं, जहां पर मुसलमान नमाजों की अदायगी करते हैं, लेकिन बाकायदा मस्जिद के तौर पर पूरे मुल्क में सिर्फ 3 मसाजिद कायम हैं। 2009 में होने वाले एक रेफरेंडम के बाद कानून में मीनार ना बनाने की तरमीम की गई थी, जिसका मुसलमानों ने अदालत में मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जिसका अभी तक कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और मोटर स्पोर्ट जैसी खेलें स्विट्ज़रलैंड में पसंदीदा और शौक़ से खेली जाने वाली खेलें शुमार होती हैं, जबकि कदीम दौर से चली आती एक खेल जिसे स्विस रेसलिंग का नाम दिया गया है, स्विट्ज़रलैंड की कौमी खेल है। आलमानी, जो जर्मन ज़ुबान की ही एक किस्म है, स्विट्ज़रलैंड में 63% लोग इस ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। 21% लोग फ्रांसीसी, 6.5% लोग इतालवी, जबकि 0.5% लोग रोमानी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। ये चारों ज़ुबानें स्विट्ज़रलैंड की सरकारी ज़ुबानें हैं, जबकि दीगर ममालिक से कामकाज के सिलसिले में आने वाले लोग अपने ममालिक की ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी को स्विस फ्रांक कहा जाता है, जो कि 1 फ्रांक पाकिस्तानी 113.82 रुपयों के बराबर है। स्विट्ज़रलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। स्विट्ज़रलैंड का कॉलिंग कोड +41 है। स्विट्ज़रलैंड का कंट्री डोमेन नेम .ch है। मजमूई मुल्की पैदावार के हवाले से स्विट्ज़रलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है, जबकि फ़ीकस आमदनी के एतबार से $61,360 के साथ स्विट्ज़रलैंड दुनिया में 9वें नंबर पर शुमार होता है। 18वीं सदी ईस्वी तक स्विट्ज़रलैंड दुनिया के बड़े बड़े इंपोर्टर ममालिक में शुमार होता था, जबकि 20वीं सदी ईस्वी में यह दुनिया के बड़े बड़े एक्सपोर्टर ममालिक में शुमार होता है। बर्न स्विट्ज़रलैंड का दारुल हुकूमत है, जबकि ज़्यूरिख अजीम तरीन शहर होने का एजाज़ रखता है। स्विट्ज़रलैंड एक यूरोपीय मुल्क है, लेकिन ये अभी तक यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं बना है। अलबत्ता 1999 में स्विट्ज़रलैंड ने यूरोपीय यूनियन के साथ कुछ मुआहदे किए थे, जिसकी मदद से तिजारत में आसानियाँ पैदा हुई थीं। हाल ही में 2 और भी मुआहदे किए गए हैं, जिनका मकसद मुल्क में माईशत के हवाले से बेहतरी लाना है। ज़राअत का शोबा मुल्क में ना होने के बराबर है, जबकि सन्नतकारी में स्विट्ज़रलैंड अपना एक अलग मुकाम रखता है। स्विट्ज़रलैंड घड़ियों और क्लॉक के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। रोलेक्स, पाटेक और दीगर घड़ियों की मशहूर ब्रांड्स स्विट्ज़रलैंड की ही मलकियत हैं। दीगर शोबों की तरह सियाहत का शोबा भी स्विट्ज़रलैंड की आमदनी में इजाफे की एक बड़ी वजह है। स्विट्ज़रलैंड के हसीनो जमील चेहरों और कुदरत के स्विट्ज़रलैंड को दिए हुए दिलकश नज़ारों को देखने दीगर ममालिक से करोड़ों अफराद इस मुल्क का रुख करते हैं। सियाहत से होने वाली आमदनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि 2016 में 3.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद ने स्विट्ज़रलैंड का विज़िट किया। इन सियाहों से हासिल होने वाली आमदनी एक तरफ तो मुल्की ख़जाने में इजाफे और मईशत में बेहतरी ला रही है, दूसरी तरफ स्विट्ज़रलैंड के 2,30,000 अफराद को रोज़गार मुहैया किए हुए है।
स्विट्ज़रलैंड का मुकम्मल नाम इत्तेहाद स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड के शहरियों को स्विस कहा जाता है। जैसे दीगर मुमालिक में कौमी फूल, कौमी परिंदा और कौमी जानवर मखसूस किए जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्विट्ज़रलैंड में ये तमाम चीज़ें देखने को तो मिल सकती हैं, मगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को स्विट्ज़रलैंड से कौमी मंसूब नहीं कर सकते। चाइना और चाइना के दीगर हमसाया मुमालिक की तरह स्विट्ज़रलैंड में आज भी कुछ लोग बिल्लियों और कुत्तों का गोश्त बड़े शौक से खाते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने औरतों को वोट का हक सिर्फ एक बार 1971 में दिया था और फिर 1991 में ये हक दोबारा वापस ले लिया गया था। स्विट्ज़रलैंड 83.4 साल की औसत उम्र से दुनिया में औसतन उम्र के हवाले से दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया की सबसे लंबी 57 किलोमीटर लंबी सुरंग स्विट्ज़रलैंड में ही मौजूद है, जो अल्प्स की पहाड़ियों के नीचे से स्विट्ज़रलैंड को इटली से मिलाती है। स्विट्ज़रलैंड यूरोप का पहला मुल्क है जिसने 2017 में कीड़े मकोड़ों जैसी खुराक को बेचना जायज़ करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2017 में स्वीडन, नीदरलैंड और स्विट्ज़रलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा जदीद मुमालिक शुमार हुए हैं। कहा जाता है कि अगर दुनिया में एटमी जंग शुरू हो जाए तो स्विट्ज़रलैंड वो वाहिद जगह है जहां पर ज़िंदगी के कुछ आसार नज़र आते हैं, क्योंकि एक तो स्विट्ज़रलैंड किसी भी मुल्क से दुश्मनी नहीं बनाता, दूसरा स्विट्ज़रलैंड में ज़मीन दोज इतने बड़े बड़े बंकर्स बनाए गए हैं जहां स्विट्ज़रलैंड की मुकम्मल आबादी भी समा जाए तब भी जगह बच जाएगी। वेटिकन सिटी के बाद स्विट्ज़रलैंड दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसका झंडा मुरब्बा शक्ल का है। स्विट्ज़रलैंड के रहायशी जैन हेनरी को, जो कि रेड क्रॉस इंटरनेशनल के बानी थे, पहला नोबेल प्राइज़ इन्हीं को दिया गया था। इसके बाद नोबेल प्राइज़ को कारकर्दगी के हवाले से मकबूल लोगों में दिया जाने लगा। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड ने कुल 17 नोबेल प्राइज़ हासिल कर रखे हैं। मशहूर ज़माना मज़ाहिया अदाकार चार्ली चैपलन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 25 साल स्विट्ज़रलैंड में ही गुजारे थे और स्विट्ज़रलैंड में ही उसने 25 दिसंबर 1977 को वफ़ात पाई थी। स्विट्ज़रलैंड ने अपने आप को होने वाली किसी भी जंग के लिए इस कदर तैयार किया है कि स्विट्ज़रलैंड मुल्क में 3000 से ज़्यादा जगह से पुल, रेलवे और सड़कों को एक बटन दबाकर कुछ ही मिनटों में तबाह करके दुश्मन के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर सकता है। दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी 1927 में स्विट्ज़रलैंड की ही कंपनी रोलेक्स ने मुतारफ़ करवाई थी। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का पहला मुल्क है जिसने सोलर प्लेट की मदद से उड़ने वाला हवाई जहाज़ तैयार कर लिया है। अलबत्ता ये हवाई जहाज़ अभी साइज़ में छोटा है। ये हवाई जहाज़ बिना तेल पानी के, बिना गिरे लगातार 40,000 किलोमीटर का सफ़र कर चुका है। इस हवाई जहाज़ को मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर अबू ज़हबी से उड़ाया गया था। कई मुमालिक का सफ़र करने के बाद फिर इसी जगह पर उतारा गया था। दोस्तों, ये थी स्विट्ज़रलैंड के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मुख्तसर सी वीडियो। बहुत सी बातें जो जानते हुए भी हमने इस वीडियो में शामिल नहीं की हैं, इनकी एक बड़ी वजह वक्त की कमी है। ज़िंदगी रही तो तमाम मुमालिक की सैर के बाद तमाम वीडियोज़ के पार्ट 2 नशर किए जाएंगे, जिनमें इन मुमालिक के बारे में रह जाने वाली बातों, सियाहती मुकामात, रहाइश के लिए होटल और वीज़े के हसूल का आप लोगों को तफसीलन बताएंगे। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ व अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपके अजीज़ व अहबाब की मालूमात में भी इजाफ़ा होता रहे और वो भी इंटरनेट के इस्तेमाल से कुछ हासिल कर लें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।